بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اسٹارٹ کر رہے ہیں اسٹیپس آف دا سائنٹیفک میتھڈ۔ آپ لوگ اگر سلیبس دیکھیں تو سلیبس کے اندر آگے جو ٹاپک دیا ہوا ہے ہائپوتھیسس کے بعد اس میں دیا ہوا ہے سائنٹیفک میتھڈ اینڈ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن۔ تو یہ دونوں سے ہی ایک طرح سے ریلیٹڈ چیز ہے، اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ سائنٹیفک میتھڈ میں کیا اسٹیپس ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم جو ہے کوئی میتھڈ کوئی ریسرچ میتھڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک سمپل سے ایگزامپل دی ہے، ہم پہلے تھوڑا سا اسٹیپس دیکھیں گے، پھر تھوڑا سا اس ایگزامپل کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے سائنٹیفک میتھڈ میں ہم نے سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے یا سائنٹیفک میتھڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح سے ہم ایکسپیریمنٹس کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ڈیفینیشنس آ رہی ہیں، آپ لوگ تھوڑا سا دیکھتے جائیے گا تو یہ ذرا سا واضح ہوتا جائے گا کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ کچھ اسٹیپس پر انوالو ہوتا ہے جو کہ ترتیب وار ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو ہے ہم کچھ ریزلٹس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ریزلٹس ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر دیکھیں تو جو اسٹیپس ہیں ان کی ٹرمینالوجی اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہم پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی کہ جب ہم کسی بھی چیز کو تھوڑا غور سے دیکھیں اور سوچیں۔ جیسے یہاں پر ایک بچے کی تصویر کے اس کے سامنے ایک ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے اور وہ اس کے اسٹیپس دیکھ رہا ہے، کس طرح سے ہم کسی ریسرچ پروجیکٹ کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ سائنٹیفک میتھڈ کے جو اسٹیپس ہیں اگر ہم دیکھیں تو پہلا اسٹیپ پرابلم اور کوشچن کہ کوشچن کیا ہے، کیا پرابلم ہے، پہلا اسٹیپ ہے۔ دوسرے اسٹیپ میں آبزرویشن اینڈ ریسرچ، کیا ہم مشاہدات کرتے ہیں، کیا چیز ہم کس چیز کے حوالے سے ہم ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر ہم ایک ہائپوتھیسس فارمولیٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم نے ہائپوتھیسس کو ڈسکس کیا تھا پچھلے 2 لیکچرز میں۔ پھر ہم اس حوالے سے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، جو ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس کا پھر ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور جو ریزلٹس حاصل ہوتے ہیں ان کا انالائز کرتے ہیں، آخر میں ہم کنکلوژن پہ چلے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ 7 اسٹیپس ہیں، جس میں سے 7واں اسٹیپ ہے کہ جو ہمارے پاس ریزلٹس ہمیں حاصل ہو رہے ہیں ان کو ہم کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں گے۔ تو یہ ایک طریقہ کار دیا ہے جس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ریسرچ پروجیکٹ ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے ہم نے ڈیزائن کیا ہے۔ اسٹیپ نمبر 1 کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ذہن میں کیا آئیڈیا آ رہا ہے، کیا پرابلم ہے جو ہم سالو کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کوشچن ہے جس کا ہم سلوشن چاہ رہے ہیں، جس کا ہم آنسر چاہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اس نے یہاں پر پرابلم یا کوشچن کا لفظ استعمال کیا۔ پرابلم عام طور پر لازمی ہوتے ہیں، ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر ہم ایک میڈیسن یوز کر رہے ہیں اور اس کے استعمال سے زیادہ تر لوگوں کو الرجی ہو رہی ہے، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ اچھا، پھر کوشچن کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی تھیوری ہے، وہ تھیوری کسی چیز پر فٹ نہیں بیٹھ رہی، تو اس حوالے سے لوگوں کے ذہن میں کوشچنس آتے ہیں، پھر وہ تھیوریٹیکل ریسرچ کرتے ہیں۔ تو پرابلم یا کوشچن اس کو اسٹیپ 1 کہا گیا ہے کہ جب ہم کوئی سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کرتے ہوئے ریسرچ پروجیکٹ بناتے ہیں تو پہلے اسٹیپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ذہن میں پرابلم ہے، یہ کیا کوشچنس ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے تھوڑا انٹرسٹ کے حوالے سے
चीज़ सोचें, जैसे कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी था। तो आप लोग वो खुद सोचें। ज़्यादा बेहतर आमतौर पर ये होता है कि हम अपने अराउंड जो प्रॉब्लम है वो देखें, और फिर फिजिबिलिटी ये भी देखें कि अगर हमारे अराउंड जो प्रॉब्लम है उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपके जो चारों तरफ अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, अपने सब्जेक्ट के हवाले से उसको सोचें, या ये कि अपने सुपरवाइज़र जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं उससे आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है, क्या रिसर्च टॉपिक्स उसके पास हैं जिसको वो आपके इंटरेस्ट में भी हों और उसके ज़रिए आप प्रॉब्लम उससे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, जब हम प्रॉब्लम हम सोच चुके होते हैं तो उसके बाद फिर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मददगार साबित होती हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा है मेक ऑब्जर्वेशन रिसर्च योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। तो जो अब आपने अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट यानी क्वेश्चन या प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है उसके हवाले से अब आप अपने इसकी ऑब्जर्वेशन लें और उसके हवाले से सर्चिंग करें, जिसको हम कहते हैं लिटरेचर सर्वे वगैरह वो करें। लेट्स से अगर आप ए से बी एक कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं तो बी कैसे बनेगा, अब आपने पहले उस पर लिटरेचर सर्वे करना है, फिर उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इसको आगे बढ़ा सकें। अच्छा, तीसरा है फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। अब आपने जो प्रॉब्लम सोची है उसके हवाले से आपको छोटा सा हाइपोथेसिस बनाना है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन या प्रॉब्लम का कोई पॉसिबल आंसर हो सकता है। जैसे इफ सॉइल टेम्परेचर राइज द प्लांट ग्रोथ विल इंक्रीज। कि जैसे हम देखते हुए आ रहे हैं कि अगर हम मिट्टी के दर्जा हरारत को या ज़मीन के दर्जा हरारत को बढ़ाएं तो प्लांट ग्रोथ तेज़ी से होगी। तो ये एक उसने एक जो हमारा क्वेश्चन है या जो हम प्रॉब्लम सोच रहे थे उसके हवाले से उसने बताया है कि किस तरह से हम एक हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 कि अब हमें एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है कि इस काम को करने के लिए हम किस तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इसके लिए एक हम प्रोसीजर डेवलप करेंगे और मटेरियल की लिस्ट बनाएंगे और चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए। अच्छा, स्टेप नंबर 5 हम अपना डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे, जो हमारे रिजल्ट्स होंगे उसको हम एनालाइज करेंगे, और अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम अपने प्रोसीजर को चेंज भी कर सकते हैं, और हम अपने रिजल्ट्स को जो है वो रीटेस्टिंग भी कर सकते हैं। हम अपने रिजल्ट्स को ग्राफ्स के ज़रिए, टेबल्स के ज़रिए, फोटोग्राफ्स वगैरह के ज़रिए भी ज़ाहिर कर सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमने डेटा कलेक्ट किया था वो उसके रिजल्ट्स क्या हैं। उसके बाद हम जो हमने काम किया है उसका हम एक कंक्लूजन बताएंगे, और उसको कंक्लूजन में हम ये बताएंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस सोचा था वो उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या उसको रिजेक्ट किया जाना। जैसे हमने कहा कि शुरू में हमने लिखा था कि अगर हम ज़मीन के दर्जा हरारत को बढ़ाते हैं, मिट्टी के दर्जा हरारत को बढ़ाते हैं तो प्लांट ग्रोथ तेज़ी से होती है। तो इस हाइपोथेसिस को सामने रखते हुए जब हम अपना रिजल्ट्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि आया ये हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या हमें फर्दर लिटरेचर रिव्यू की ज़रूरत है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो सॉइल टेम्परेचर बढ़ाने पर तेज़ी से ग्रो करेंगे, और कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन पर इनका इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। और लास्ट में कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपने रिजल्ट्स बनाए होंगे उसको आप लोगों के सामने पेश करें, और जब आप अपना कोई रिजल्ट पेश करेंगे तो उस पर लोग सवाल जवाब भी आपसे करेंगे,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जब लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो खुद आपके जहन में भी बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट मिस कर दी, जिन पर मैंने और नहीं किया, क्या चीज़ें थी, किस तरह से हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कोई मिस्टेक की है या किन किन बातों का हमने ध्यान नहीं रखा। तो ये चीज़ें बाद में होती हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आम तौर पर जब हम कोई रिसर्च कंप्लीट करके उसको ऑडियंस के सामने पेश करते हैं, तो जो रिसर्चर होता है वो आमतौर पर तकरीबन सारी ही बातों का ख्याल रखता है, और जब वो अपने रिजल्ट्स ऑडियंस के सामने पेश करता है तो उस पर फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं कि आपने ये काम क्यों किया, किस तरह किया, आपके जहन में क्या आइडिया था, आपके प्रोजेक्ट की क्या अहमियत है, आपने जो आउटपुट निकाला है, जो आपकी रिसर्च आउटपुट है, वो किस तरह से अप्लाई हो सकती है, आया आपने कोई नई चीज़ ईजाद की है, या आया आपने किसी चीज़ की एफिशिएंसी में इजाफा किया है। जैसे लेट्स से अगर आप कोई कंपाउंड की सिंथेसिस कर रहे हैं, तो उससे पहले जो सिंथेसिस मौजूद थी, आया आपने कोई उससे एफिशिएंट सिंथेसिस बनाई है, कम टाइम में उसको बनाया है, या उस सिंथेसिस के दौरान आपने कोई और नई चीज़ आइडेंटिफाई की है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये इस हवाले से आपसे क्वेश्चंस होंगे। तो आम तौर पर हम लोग डरते हैं, हम कहते हैं कि नहीं जी हमने काम कर लिया, बस चुपके से इसको पेश कर दो और थीसिस वगैरह अपनी जमा करा दो। तो ये आमतौर पर एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आमतौर पर हम लोग अपने यहाँ करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर जगहों पर तालिब इल्म घबराते हैं अपना काम प्रेजेंट करते हुए कि पता नहीं हम डर जाएंगे, या मतलब कोई हमें डराएगा, या कोई हमें हमारे काम को बिल्कुल गलत करार दे देगा या ज़ीरो कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आम तौर पर जब हम सबसे आखिर में अपना काम प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं, तो बुनियादी मकसद ये होता है कि लोग उस पर डिस्कशन करें, हेल्दी डिस्कशन करें, और उससे जो आपको आउटपुट हासिल हो तो आप उसमें मज़ीद एफिशिएंसी में उसका इजाफा कर सकते हैं, मज़ीद अपने रिजल्ट को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका काम बिल्कुल ही कोई ज़्यादा अच्छी नोयत का नहीं है, तो लाजमी है आपको मज़ीद काम करना पड़ेगा। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। जब आप किसी सुपरवाइज़र के अंडर में काम करते हैं तो काफ़ी आप मेहनत करते हैं, और सुपरवाइज़र भी आपको अच्छा खासा काम करवाता है, उसे पता होता है कि किस तरह से अगर एमएस का थीसिस लिखना है तो कितना काम करना चाहिए स्टूडेंट को, पीएचडी का थीसिस करना है तो स्टूडेंट ने क्या क्या काम उसको आना चाहिए। तो ये सारा डिपेंड कर रहा होता है आपके सुपरवाइज़र पर भी। तो आमतौर पर ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये कि जब आप अपने आइडियाज़, अपने प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो उससे आपको और आइडिया मिलते हैं और आप अपने रिसर्च को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। उस डिस्कशन से आप मज़ीद अपने उस आइडिया को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप इस तरह कोई रिसर्च वर्क करें, कोई काम करें, तो कोशिश ये करें कि उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करें, और उससे फिर आपको मज़ीद उसमें बेहतरी होगी। अब एक ये चीज़ है कि क्या हमने जो पीछे स्टेप्स थे उसको रिवाइज कर सकते हैं, तो ज़रा सोचें। और अब हम अगली स्लाइड में, अब मैं यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसके साथ अपलोड करूँगा उसमें हम इसको पूरा देखेंगे कि ये 7 स्टेप हैं, इनको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं।